हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक इन द सीरीज वर्ल्ड अफेयर्स थ्रू एटलस। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है पीपल एंड प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन रेस हैज ट्रेवल्ड इट्स नंबर इन लेस देन वन लाइफ टाइम। सी 1930 में हम लोग अराउंड 2 बिलियन होते थे. Now we are about 6.5 billion, actually much more than that. The annual increase is reckoned to be about 75 million annual increase. ठीक है. Today the two most populous countries we all know, China and India, जिसमें दोनों ही most populous हैं in the whole world. So both countries are in Asia, which for last centuries have always contained more than half of the humanity together. Asia, Africa and Latin America now contain almost 5-6 and the proportion is still rising because many countries in those regions have relatively high rates of population growth. So जो natural growth होता है उसके contrast में हमारा जो एशिया, अफ्रीका and Latin America, these are growing very very rapidly. Okay, so growing at 2% a year. A population doubles in 35 years. A few decades ago, most countries outside Europe and North America exceeded this rate. तो ये rate तो exceed हो चुकी है. In recent years, growth rates have dropped around the world, and now few countries outside Africa are growing at such a pace. The majority of the world's government have adopted policies aimed at limiting population. For example, जो China लेके आया था one child policy, तो many of the countries are opting for that thing. क्या लिमिट करने के लिए किसे पॉपुलेशन को. The limiting of family size have been actively discouraged by some religious authorities and some national governments, though even theocratic governments such as Iran's have moved to reduce population growth. As birth rates decline, migration and aging will continue to increase in importance as the world's primary drivers of demographic changes. Historically, population growth was sometimes seen as a sign of national strength. पहले क्या देखा जाता था कि जिसके पास जितना ज़्यादा population होगा उसके nation का strength उतना ही ज़्यादा होगा. Forests were meant to be felled. Forest को गिरा दिया गया. Plains to be tilled. क्यों? अगर आपके पास population ज़्यादा है तो आपको उनको feed करने के लिए agriculture ज़्यादा produce करना पड़ेगा. And for that matter आपको forest को deforestation करना ही होगा. So this was especially true in the America's vast and thinly populated in the 16th century, the more so after genocide and diseases brought by European explorers and settlers discriminate the indigenous population. So we believe, and it is well documented, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वहाँ पे वास्ट एंड थिनली पॉपुलेटेड. उनका पॉपुलेशन कम था 16th सेंचुरी में, एंड पूरे अमेरिका में, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वो लोग वास्टली पॉपुलेटेड थे. देन आपका आया जीनोसाइड एंड डिसीजेस. कौन लेकर आया? यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड सेटलर्स, जिन्होंने वहाँ के इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन था उसको वाइप आउट कर दिया, क्योंकि वो अपने साथ में ऐसी बीमारियाँ लेके आए जो अमेरिकन्स को, जो नेटिव अमेरिकन्स थे वहाँ पे, वो लोग उससे अडेप्टेड नहीं थे. तो व्हेन दैट कम, वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही वहाँ से वाइप आउट हो गया. थॉमस माल्थस warned in 1798 that population growth would eventually overwhelm the Earth's capacity to provide food. He was observing what was then the zone of fastest natural increase in the world, United States. ठीक है. थॉमस माल्थस, माल्थुसियन, हम एक इसका थियोरी पढ़ते हैं जिसमें ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द कैपेसिटी टू प्रोवाइड फूड. अर्थ का कैपेसिटी कितना है फूड प्रोवाइड करने के लिए, और उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन किस रेट पे बढ़ रहा है, उसको इन्होंने कंपेयर किया था. इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज इंश्योर्ड दैट हिज प्रेडिक्शन हैज नॉट कम ट्रू. इन्होंने बोला था कि जिस रेट पे आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस रेट पे आपका अर्थ फूड प्रोवाइड नहीं कर सकता. बट मोर पीपल मीन्स मोर प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. तो एज वी कैन सी, ऐसा तो नहीं हुआ कि जितने लोग बढ़ रहे थे हम उन्हें खाना नहीं दे पाए. आज की डेट में हार्डली बहुत कम ऐसे पैचेज हैं जहाँ पे लोग भूख की वजह से मर रहे हों. लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे उतना ज़्यादा प्रेशर आया है.
In the past few decades, some effects of rapid population growth have become more visible and more alarming. Soil erosion, overgrazing, destruction of forests, enlargement of deserts in the oceans, the devastation of fish stocks in cities, the multiplication of crowded slums. कुछ कुछ अगर हम prominent effect देखें क्या क्या हुआ है. Deforestation as a large rate, enlargement of deserts, oceans पे इसका effect क्या है, devastation of fish stocks, और cities में especially the multiplication of crowded slums. So the last of these is associated with prominent feature of our time, the growth of giant cities. 1950 में क्या था, there were only 6 cities on conurbation that stained as many 5 million inhabitants. ये 1950 का बात हो रहा है, and especially the developed world. Now half of world's population lives in urban areas and there are at least 20 whose population exceeds 10 million. So this is well documented कि अभी हमारा ज़्यादातर जो population है वो urban areas की तरफ है, वहीं पे move कर रहा है. हमारी country में the percentage is bit कम, लेकिन that also is changing very rapidly. और अभी कम से कम इसमें 20 दिया है, मोर देन 20 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका पॉपुलेशन 10 मिलियन से कहीं ज़्यादा है. सम ऑफ दीज इंक्लूड ह्यूज स्लम्स पैक्ड विद पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव ओवर पॉपुलेटेड रूरल एरियाज. जो भी लोग माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ, तो हर किसी को इतना अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लम्स एरियाज. ठीक है, ये कुछ मैप दिए हुए हैं. मेन एसिड रेन जोन, अगर आपको ऐसा वाला डॉट कहीं भी दिखेगा तो मेन एसिड रेन जोन है वो. डेंसली पॉपुलेटेड लो लाइंग एरियाज एट रिस्क फ्रॉम द सी लेवल, जहाँ पे ऐसा डॉट दिखेगा. अदर रीजन ऑफ सीवियर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, जहाँ पी है वहाँ पे सीवियर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन मिल जाएगा. ये वाली लाइंस आपको डेजर्ट रीजन दिखाएंगी. ये लाइन दिखाएंगी जो डेजर्ट बनने जा रहे हैं, इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग डेजर्ट. और ये जो छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स हैं मेन जोन्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो लेट अस सी वन बाय वन. ठीक है, ये आपके पीपल एंड प्रेशर का ग्राफ है. दिस वी कैन सी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपके ये जो एरिया है दिस इज योर मेन एसिड रेन जोन. देन ये बहुत छोटा छोटा है, ये आपका एरियाज इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग डेजर्ट, क्योंकि इसके आसपास आप देखें यहाँ पे है डेजर्ट रीजन. ये पूरा एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का. ओके, इधर भी आप देखें अगर तो ये है आपका एसिड रेन. ये पूरा एरिया डेजर्ट हमारा थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया मेजर पार्ट आपका डेजर्ट से कवर्ड है. कहीं पे आपका रेन फॉरेस्ट भी है. ये सम पार्ट जहाँ पे आपका जो पोल्यूशन है स्पेशली इंडस्ट्रीज की वजह से. सो दीज आर योर एरियाज. सो बेसिकली जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है वहाँ वहाँ आपका पोल्यूशन बहुत है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज. So ill-chosen policies have contributed to the loss of forest and growth of desert. So in some countries, uncontrolled logging and misdirected subsidies have caused disastrous deforestation. Great leap forward, चाइना की माओइस्ट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ऑर्डर किया था 1958 से 1962. left vast tracts of land deforested and desertified as well as causing 28 million death हुआ था famine के कारण. Why? Because of great leap forward policy.
In 1990s, desert areas around the Aral Sea were still expanding and that sea itself was drying up as a result of Soviets planning. So अगर वन सेकेंड, अगर आपको ये सारे एरियाज नहीं पता है कि ये कहाँ पे है और भी ज्योग्राफिकल एरियाज पूरे वर्ल्ड के कहाँ है, तो इससे पहले आप एक वर्ल्ड एटलस सीरीज है जिसमें एटलस सिंप्लीफाइड है, उसको एक बार आप देख के पढ़ के आइएगा तो आपको ये सारा इजीली समझ में आएगा. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, high population growth in arid regions of the Middle East to the southwest US has increased the pressure on groundwater resources. कुछ एरियाज में ancient deposits of underground fossil water are not replenished by rainfall and aquifers are being used up or mined. तो हो क्या रहा है, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ से हमने पानी यूटिलाइज कर लिया है लेकिन रेन जो है उतना सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होता है जिससे वो वापस से रिप्लेनिश हो पाए. द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इज लीबियाज ग्रेट मैन मेड रिवर, अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइन दैट सप्लाइज कोस्टल सिटीज एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम सहारा एक्वीफर्स. ठीक है. द एसिड रेन दैट डैमेजेस फॉरेस्ट कम्स मेनली फ्रॉम एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सी होता क्या है, जब भी जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज लगी हैं इन द होल वर्ल्ड, उसमें से पॉल्यूशन निकलता है ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच देन रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज एसिड रेन. So these have been cut by a third or more than since 1980 in Western Europe and North America, but are on the increase in the industrializing Asia. So पहले जहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वेस्टर्न एरियाज में, वहाँ से अभी ये थोड़ा कम हो गया है लेकिन इट इज़ स्टिल इंक्रीजिंग इन द एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एशिया. Airborne pollution from the burning of coal or fossil fuels can also endanger health. And by 1980s, there were fears that carbon dioxide emissions from fossil fuel would cause a global warming. If the ice in Antarctica and Greenland then melted, the sea level would rise and inundate densely populated coastal areas. So basically हो क्या रहा है, जो भी fossil fuels से emissions हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस का जो emissions हो रहा है, उससे as a result global warming is forming and जो आपका ice caps है in Antarctica वो मेल्ट हो रहे हैं. ठीक है, उससे क्या हो रहा है, आपका सी लेवल इंक्रीज हो रहा है और जब भी सी लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा तो जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में कोस्टल एरियाज वाले जो सिटीज़ हैं दैट वुड गेट सबमर्ज, वो डूब जाएंगे. द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 sought to reduce global warming through internationally agreed national limitation of carbon dioxide emissions. क्योटो प्रोटोकॉल आया था इन 1997 टू लिमिट दीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. उसमें बहुत ही माइन्यूट आपको डिफरेंसेस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट हमको मिला है. पार्टली बिकॉज द प्रोटोकॉल वॉज नॉट रेटिफाइड बाई यूएस. एक्चुअली पहले वो रेटिफाई हुआ ही नहीं था यूएस से, देन यूएस उसमें कुछ काम किया, बट द करंट गवर्नमेंट ऑफ यूएस वो रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग जैसी किसी चीज़ को. सो दिस क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ नॉट बीन ऑफ वेरी मच यूज टू अस. So on other kind harmful emissions, however, action was taken. Man-made chlorofluorocarbons have made a hole over Antarctica in the ozone layer in the stratosphere that shields the earth from ultraviolet rays. So what happened was, जो man-made chlorofluorocarbons थे CFCs, उन्होंने over Antarctica एक होल कर दिया था ओजोन लेयर में, which is in stratosphere. एंड बिकॉज जो ओजोन लेयर है उसका काम होता है शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज. तो उसके लिए हमने फिर बाय 1996 प्रोडक्शन ऑफ CFCs इन द OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, वाज फेज्ड आउट एंड होल हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग. सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रीटी विच वी कैन से जिसका हमें रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट देखने को मिला. द रीजन वाज कि जो इसका इफेक्ट था वो लोगों पे एट द सेम टाइम विजिबल था. इसके लिए वो सारे काम किए गए जिससे जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन लेयर है वो रिपेयर हो पाया. ओके, सो द फ्यूचर एक्सटेंट of man-made global warming is still debatable. The experts who predict it and measured its beginnings do not at all agree about its speed, scale and effects,
but the level of carbon dioxide and other atmospheric greenhouse gases has risen rapidly in the recent decades. Skeptics point out that in the past, temperature have often changed without any help from mankind, so the changes now detected may not be wholly man-made. अब होता क्या है, कुछ लोगों का ये कहना है कि चाहे आप एमिशंस करें या ना करें, जो टेम्परेचर्स हैं ऑफ द ग्लोबल वो चेंज होता ही होता है. तो जब ये चेंज होगा तो इट इज़ डिबेटेबल कि ये पूरा मैनमेड है या नेचुरल है. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जिस रेट पे वो टेम्परेचर चेंज होता था, ह्यूमन काइंड ने विद हिट्स ओन डीड्स उसको रैपिड कर दिया है, उसको तेज कर दिया है. So, but those who seek to curb the use of fossil fuel have other arguments. Although many new oil fields yet to be found, these fuels are finite. The long-term aim must be to avoid the exhaustion of finite fuels by making maximum use of renewable energy sources. An encouraging development is that the cost of harnessing wind and solar power have been falling. So recent years में हमने देखा है कि जो cost है, पहले क्वेश्चन ये होता था कि जो डेवलप्ड नेशंस है दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, वो सारा यूटिलाइज कर चुके हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको अवेलेबल था. एंड नाउ व्हेन इज द टर्न ऑफ डेवलपिंग नेशंस, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, ये सारी जो ट्रीटीज हैं, दे आर स्टॉपिंग दैम टू यूटिलाइज देयर ट्रू नेचर ऑफ पावर. वो उन्हें डेवलप वो हो ही नहीं पाएंगे अगर वो ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे. तो उसका एक ऑल्टरनेटिव जो निकाला गया है अभी, विंड और सोलर पावर, because these are infinite sources of energy, and second अभी recently उसका cost of harnessing is also reducing. so ये इसका एक alternative हो सकता है. alright, so this topic is ending here only. जो next topic होगा उसमें हम continue करेंगे with the economic groupings. so I hope you liked it, enjoyed it, and see you then. Bye bye, take care, God bless you all.